विश्व साइकिल दिवस 2024 के अवसर पर नई दिल्ली में स्मार्ट बाइक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और वर्ल्ड साइकिलिंग अलायंस के संयुक्त तत्वाधान में स्मार्ट एवं सस्टेनेबल मोबिलिटी थ्रू साइकिलिंग विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। वहीं सेमिनार में विशेषज्ञों ने बढ़ते प्रदूषण, खराब AQI और ट्रैफिक समस्याओं के समाधान के रूप में साइकिलिंग को प्रभावी विकल्प बताया। वहीं इसके साथ ही कार्यक्रम में पूर्व नागरिक उड्डयन सचिव KN श्रीवास्तव, स्मार्ट बाइक के चेयरमैन BV मनोहर, भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिर्देशक मयंक श्रीवास्तव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक रोहिना गुप्ता और वर्ल्ड साइकिलिंग अलायंस के अध्यक्ष सर ग्राहम वॉटसन सहित कई प्रमुख विशेषज्ञ शामिल रहे। वहीं आपको बता दें कि प्रवक्ताओं ने साइकिलिंग को स्वच्छ पर्यावरण, बेहतर स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरी परिवहन का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। वहीं इसके साथ ही 7 जून को हैदराबाद और चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले विश्व साइकिल दिवस मेगा इवेंट्स पर भी चर्चा की गई, जिसमें 8000 से अधिक साइकिल चालकों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं सेमिनार का मुख्य संदेश था बी द फ्यूचर मेकर, अर्थात स्वच्छ, स्वस्थ और स्मार्ट शहरों के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। I'm BV Manohar, Chairman Smart Bike and also first Vice President of World Cycling Alliance based at Brussels. Now, साइकिलिंग को लेकर आज जो ये बढ़ावा दिया गया है पॉल्यूशन कम करने के लिए, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे और अब क्या रूल रेगुलेशन आने चाहिए? cycling promotion is the need of the hour. अभी पोल्यूशन लेवल्स इतना बढ़ते जा रहे हैं, वो कम करना जरूरी है and cycling is the most cost-effective solution. I've already told in my presentation that it does not need much investment from the government. What is required is sensitizing the people. Like, for example, making cycling, promotion of smart and sustainable mobility as part of the curriculum at high school level. Then the students, they will learn the importance. Then once they learn, they not only cycle, they will make their parents, their relatives also cycle. And it happened in European countries, Australia. I've seen in Australia, I attended one class where it is taught. It is so very interesting. So such things, sensitizing the people is very important. And by doing that, we can bring more and more people into cycling. Our cycling infrastructure create करना है, cycling tracks का जरूरत है, cycles का इसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम प्रमोट करना है under PPP mode. So cycles will be brought by private sector under public bike sharing system. But building the cycling tracks, that is the responsibility of the government, because government has the land. It is government road, adjoining the government road, it has to be built. But that also can be contributed. I mentioned about 10% of the CSR funds to be utilized for this purpose. So this building the cycling tracks also can be funded by the corporates. So what is required is a will. What is required is working with a purpose. And with that, we can solve this major problem. See, as I mentioned, the COVID killed 5 lakh people in 2 years in India. And there was such a hue and cry about it, naturally so. But how many of us know that pollution, vehicular pollution is killing 22 lakh people every year all over the country? That is the magnitude of the problem. And it needs to be addressed on a very urgent basis. सर, किसी भी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी फेस की जरूरत रहती है, ब्रांड एम्बेसडर के तरीके से आप किसी को जोड़ रहे हैं अपनी मुहिम के साथ?
Please repeat again. किसी भी किसी? मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कोई ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत होती है, तो किसी बॉलीवुड स्टार या किसी सेलिब्रिटी को आप अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं इस मुहिम में? Brand ambassador. Why don't you suggest who could be the brand ambassador? सर एक्चुअली में कोई भी मुहिम को आप लेके जाएंगे तो कोई ना कोई फेस आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है उन चीज़ों का। तो आपको लगता है कि कहीं जुड़ना अच्छा रहेगा या नहीं? 15 साल पहले हम दोनों हैदराबाद में स्टार्टिंग करना शुरू किए. People laughed. Why are you cycling? Have you got broke? Then we faced all that. Then we ourselves became brand ambassadors. We started cycling everywhere and we promoted it. Now, we started a cycling revolution first in Hyderabad. Our Hyderabad Cycling Club has 21,000 members and cycling has become a fashion there. So the same thing we want to replicate. We are now doing it in Chandigarh, Chennai, Kota, Hyderabad, in addition to Hyderabad and New Delhi also. So Bollywood star को लेके आने का जरूरत नहीं, हम खुद. सर वर्ल्ड बाईसाइकिलिंग डे पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो फिट इंडिया की ओर से, खेलो इंडिया की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की ओर से सभी देशवासियों को वर्ल्ड बाइसिकल डे की बधाई देना चाहता हूँ. जैसा मैंने कि इस कन्वेंशन में भी बोला है कि इस तरह के जो दिवस हैं वो हम सभी के लिए दिन ब दिन महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि ये वो समय है जिसमें विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश उसको असर्ट करने का टाइम है, उसको अपनी बात को मजबूती से रखने का टाइम है, जिसमें वो दिखा सके कि भारत जो है साइकिलिंग और इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे खेलों के लिए बहुत ही लोकप्रिय देश है, बहुत ही लोकप्रिय है ये खेल इस देश में, और बहुत सारे लोग इस इस खेल को खेलते हैं. इसके अलावा हम लोगों का जो एक कहने की एनवायरनमेंट के प्रति जो कमिटमेंट है वो भी हम साइकिलिंग के माध्यम से पूरा करते हैं. बहुत सारे लोग, मेरा अनुमान है कि 1 करोड़ लोग कम से कम साइकिल चलाते हैं यहाँ पे भारत में, और इस तरह से हम एनवायरनमेंट के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाते हैं. और इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आज चूँकि वर्किंग डे है तो वर्ल्ड बाइसिकल डे का हम लोगों ने एक कैंपेन कर रहे हैं जिसमें हमारे साथ CFI साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और यूनियन साइकिलिंग इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल साइकिलिंग फेडरेशन है उसके सानिध्य में, उनके सपोर्ट से हम लोग 1 लाख लोगों के साथ साइकिल राइड करेंगे 7 जून को, संडे को, वर्ल्ड बाइसिकल डे के उपलक्ष्य में. और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि उसमें सम्मिलित हों. फिट इंडिया की पोर्टल पे उसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 5 तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा. तो आई वुड अपील एवरीबडी टू काइंडली जॉइन अस इन दिस. वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के लिए क्या मैसेज देंगे आप, और युवाओं को किस तरीके से आप प्रेरित कर रहे हैं? देखिए, आज जो यहाँ पे हम लोगों ने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जाए. साइकिलिंग को क्यों बढ़ावा दें, इसके 2 कारण हैं. एक तो कारण है कि जितना लोग साइकिलिंग करेंगे उतना उनका शारीरिक श्रम होगा और इससे उनके हेल्थ को भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा. जो हमारे मनोहर साहब ने कहा, जो स्मार्ट बाइक के फाउंडर हैं, कि एक समय था जब वो बड़े ही हेवी डायबिटिक कंडीशन से जूझ रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने साइकिलिंग स्टार्ट करी अब वो सारी जो उनकी बीमारियां थी ख़त्म हो गई. तो एक तो मनुष्य का स्वास्थ्य से बहुत अच्छा होता है. दूसरी बात यह है कि आज आप देख रहे हैं कि हम लोग ऑयल क्राइसिस जो आई है ईरान और अमेरिका की लड़ाई की वजह से, उससे हम जूझ रहे हैं और सप्लाई नहीं हो रही, इसलिए हमारी लाइफ बड़ी मिजरेबल होती जा रही है. यदि हम साइकिलिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते तो शायद इतना कष्ट नहीं झेलते होते जो आज झेल रहे हैं. तीसरी बात यह है कि साइकिलिंग से जो है पोल्यूशन को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. दिल्ली जो है जाड़े के महीनों में यहाँ पे रहना बड़ा दुश्वार हो जाता है. लोग यहाँ से जाते हैं, जो रहते हैं उनके लिए भी स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं होती हैं. स्टडी बताती है कि दिल्ली वासियों की जो नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 10-15 साल कम हो रही है. इन सब चीज़ों को भी काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं यदि साइकिलिंग को प्रमोट करेंगे. इससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो हो रहा है
उसमें काफ़ी कमी आएगी। सर सेफ्टी मैनेजमेंट से देखा जाए तो रोड पे साइकिल से जाना थोड़ा खतरनाक रहता है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि these ट्रैफिक रूल्स को इन्फोर्स किया जाए, सिर्फ पुलिस के द्वारा ही नहीं, इवन द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एंड सबसे बड़ा रोल है जुडिशरी का, क्योंकि पुलिस यदि केस फाइल करते हो जुडिशरी में सालों साल मुकदमे इसे पड़े रहेंगे, लोगों के अंदर डर नहीं होता है। इसलिए अच्छा, दूसरी क्या है, ट्रैफिक वायलेशन वाले जो केसेस, ऑफेंस के केसेस होते हैं, इसका तो समरी ट्रायल होना चाहिए। जिस दिन केस फाइल हुआ वहीं पे उसको तुरंत डिस्पोज ऑफ कर देने चाहिए। जब इससे लोगों के अंदर एक डर होगा, फिर वायलेटर्स के अंदर वो जो डर पैदा होगा, अपने आप जो है ट्रैफिक रूल्स इन्फोर्स करना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि जुडिशरी को भी इसके विषय में ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। इन सब केसों का जितना जल्दी से जल्दी निपटारा करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप मदद करेंगे रूल्स को इन्फोर्स करने में। थैंक यू सर।